जैसलमेर राजस्थान में फिल्म बॉर्डर 2 से जुड़े गीत घर कब आओगे के लॉन्च के मौके पर प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद प्रसन्नता है कि इतने साल पहले आया ये गीत एक बार फिर लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। सोनू निगम ने कहा कि इस गाने से देशभक्ति और भावनाओं का गहरा जुड़ाव है और आज की नई पीढ़ी भी इसे उसी भावना के साथ अपना रही है जो उनके लिए गर्व और संतोष की बात है। जी बहुत खुशी हो रही है। एक गाना जो इतना पहले आया था वो फिर से रोशन हो रहा है। बेंगलुरु में बीसीसीआई द्वारा केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहे जाने पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी बीसीसीआई और आईसीसी द्वारा तय किए गए नियमों का पालन कर रही थी, इसलिए सवाल केकेआर या शाहरुख खान से नहीं बल्कि बीसीसीआई और आईसीसी से किए जाने चाहिए। प्रियंक खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर शाहरुख खान को राष्ट्रविरोधी कहा जा रहा है तो फिर बीसीसीआई और आईसीसी भी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने गृहमंत्री पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि गृहमंत्री और उनके बेटे इस पूरे मामले में क्या कर रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी जब अपने फायदे के लिए होता है तब राष्ट्रवाद की बात करती है, अन्यथा वही लोग देश के इतिहास के सबसे बड़े राष्ट्रविरोधी साबित होते हैं। बेंगलुरु में That is left up to the BCCI. I am asking a simple question. You are questioning the franchisee, right? The franchisee was following the rules laid out by BCCI or ICC. Instead of questioning the people who laid out the rules, you are questioning the people who's following the rule. So if Shah Rukh Khan is anti-national, so is BCCI, so is ICC. So what is the Home Minister doing? What is the Home Minister's son doing? They are in charge, right? How these statements are coming? What is motivating in fact BCCI? They have nothing to do with. No, they have. See, BJP evokes nationalism when it is advantage to them. That's all. Otherwise, they are the biggest anti-nationals in the history of India. Why you are saying this, sir? Because one of the BJP leaders. No, tell me one thing. So, how is anybody a traitor? Who BJP will label me a traitor nowadays? Who are they to give me a certificate? And how? Tell me, how did the franchisee or the franchisee owner do anything anti-national? So if he is an anti-national, so is the person who laid the rules. Who laid the rules? BCCI. Who is governing that? ICC. So make all of them anti-nationals, no? Send them out. Tell them, you want to send them to Pakistan, send them to Pakistan. You want to send them to Afghanistan, send them to Afghanistan. But let all of them go. Why single out one person who is following the rules? Many religious leaders are coming out and they are saying it's a respect to the larger community. The BCCI have taken this decision. See, I'm not sure what the religious leaders have told. Preachers. When Pahalgam attack happened, the entire public sentiment was not to play Pakistan. Why did BCCI choose to play with Pakistan? Why? Was national, were profits more important than patriotism that time for BCCI? They have shown it, that they prefer profits over patriotism. बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बल्लारी में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के नेता मौजूद थे। उन्होंने सवाल उठाया कि शहर में पोस्टर लगाने में क्या गलत है। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा जलन के कारण कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रही है और पुराने हालात को दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार ऐसा होने नहीं देगी और शांति एवं सद्भाव बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। Because Congress party gave a beautiful program installing the Valmiki statue in Ballari. Lot of Valmiki leaders are there. Valmiki MP is there. Yes, there was no statue. We decided to have a statue. What's wrong if they put the posters in the entire city? In front of my house also, lot of BJP posters will be put. What's wrong in that? We can't avoid it. So why he is suffocating? All these years, Ballari was peaceful because he lost against Bharat Reddy. His wife lost, his brother lost, all of them lost in parliament, assembly and everything. Due to jealousy, they are creating law and order problems. You said they are trying to bring those old days, sir? Yes, they are trying to build the old days. It is not possible. This government will not allow.
दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने मनरेगा बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि नए कानून का डिजाइन मनरेगा को कमजोर कर खत्म करने जैसा है, जबकि ये देश की सबसे बेहतर मांग आधारित रोजगार योजना है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत करीब 5 करोड़ लोगों को अपने ही गांवों में रोजगार मिला, जिससे भूख में कमी आई, पलायन घटा और ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि हुई। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां इस सफल योजना को नुकसान पहुंचा रही हैं और कांग्रेस मनरेगा की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। Congress working committee decided to launch a national-wide agitational campaign, Manrega Bachao Sangram, throughout the country. Basically, the design of the new law is very clear: to kill Manrega, which is one of the best demand-driven scheme of this country, poverty alleviation scheme of this country, not only this country, internationally renowned poverty alleviation scheme. You people know that every year 5-6 crore rural families found work in their own villages. Hunger reduced, migration declined, rural wages rose, and durable assets such like a pond, roads, canals, and check dams were created. During those floods, COVID, economical crisis period, Manrega became the strongest safety net for the poor people of this country. पटना में बीसीसीआई द्वारा केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के फैसले पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर देश की जनता में भारी आक्रोश है और इसी वजह से इस तरह के कदम उठाना जरूरी हो जाता है। दिलीप जायसवाल ने संकेत दिया कि मौजूदा परिस्थितियों और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, इस तरह की भाषा का जो उपयोग करते हैं, वो किसी का पति और किसी का बेटा नहीं कहलाता है, वो तो गलत है, भर्त्सना करते हैं हम लोग। इस तरह का भाषा का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश प्लेयर को रिलीज करने के लिए बीसीसीआई ने क्या कहा है? ये जो बांग्लादेश की घटना घट रही है, उसको देख करके लोगों के अंदर रोष है, इसलिए इस तरह की जो है स्टेप उठाने चाहिए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बीसीसीआई द्वारा केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं उनकी क्या हैसियत है। इमरान मसूद ने कहा कि शाहरुख खान पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े करते हुए पूछा कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार और दमन के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या ठोस फैसला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवाद खड़े कर रही है। आरोप लगा रहे हैं, उनकी अपनी हैसियत क्या है? शाहरुख खान पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करता है और मुझे इससे मतलब आप किसी को देशद्रोही कह दो, क्या हम लोगों के जो रिश्ते हैं वो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया? विदेश मंत्री गए थे 2 दिन पहले, क्या कर आए? लगातार वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, धर्म के आधार के ऊपर चिन्हित कर करके उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्शन ले रही है? उस एक्शन के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। आप शाहरुख खान के ऊपर चल दिए हैं, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर बताओ तुम्हारी सरकार क्या कर रही है। बेंगलुरु कर्नाटक में बीसीसीआई द्वारा केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के फैसले पर आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस फैसले के लिए बीसीसीआई का धन्यवाद करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में उस देश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में खेले ये स्वीकार्य नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि बीसीसीआई ने सही निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक केकेआर की ओर से कोई बयान नहीं आया है जो पीड़ादायक है। उनका कहना था कि ये दुखद है कि केकेआर शाहरुख खान के साथ खड़ा होता नजर नहीं आ रहा। तरफ से आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमने जो 25-26 तारीख को एक मुहिम या कह लीजिए बयान दिया था कि किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत के आईपीएल में खेलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, यहां से पैसा नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे रीजन है कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में हमारे बच्चे जलाए जा रहे हैं, 6-6 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और ये सब होते हुए जिस देश में हो रहा है और उस पे केकेआर और कोई भी नहीं बोल रहा है, और उसी देश का क्रिकेटर अगर यहां खेले, तो मैंने बीसीसीआई से उस समय कहा था और बहुत बहुत साधुवाद कि बीसीसीआई को बहुसंख्यक हिंदुओं का दर्द दिखा और उन्होंने ये स्टेप लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और बात, केकेआर को भी हमने कहा था, और इतना सब कुछ हो गया पूरे मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में, लेकिन जिस देश ने उनको हीरो बनाया है, उनकी बहुसंख्यक लोगों के साथ इतना बड़ा दर्द हो रहा है, इसके बावजूद भी मिस्टर केकेआर का एक बयान नहीं है। तो मिस्टर केकेआर दिखाएंगे बेटा कि कैसे सनातनी एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दर्द रहेगा कि मिस्टर केकेआर हम हिंदुओं के साथ नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत केवल भगवान बुद्ध की विरासत का रक्षक ही नहीं बल्कि उनकी परंपराओं का वाहक भी है। उन्होंने बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वहां भगवान बुद्ध से जुड़ी हजारों धरोहरें अवशेष खोजी गई थीं, और आज उनकी सरकार न केवल इनका संरक्षण कर रही है बल्कि नई पीढ़ी को इससे जुड़ा ज्ञान भी दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में बौद्ध स्थलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान बुद्ध से जुड़ी पाली भाषा को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से इसे शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। साथियों, भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता, बल्कि हमारा जुड़ाव कहीं गहरा है। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं, हम आस्था और अध्यात्म से भी कनेक्टेड हैं। साथियों, भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। पिपरवा, वैशाली, देवनी मोरी और नागार्जुन कोंडा जैसे प्राप्त भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष बुद्ध के संदेश की जीवित उपस्थिति है। भारत ने इन अवशेषों को साइंस और अध्यात्म हर रूप में संभाला है, सहेजा है। साथियों, भारत का ये भी निरंतर प्रयास रहा है कि दुनिया में बौद्ध विरासत से जुड़े भी स्थान हो, जो भी स्थान हो, उनके विकास के लिए हम यथासंभव योगदान दे सके। जब नेपाल में आए भीषण भूकंप ने प्राचीन स्तूपों को नुकसान पहुंचाया, तो भारत ने उसके पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। म्यांमार के बागान में आए भूकंप के बाद हमने 11 से अधिक पगोड़ाओं का संरक्षण किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारत में भी बौद्ध परंपरा से जुड़े स्थानों और अवशेषों की खोज और उनके संरक्षण का काम निरंतर चल रहा है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, मेरा जन्म स्थान गुजरात का वडनगर बौद्ध परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां बौद्ध परंपरा से जुड़े हजारों अवशेष मिले थे। आज हमारी सरकार इनके संरक्षण पर भी बल दे रही है और आज की पीढ़ी को इनसे जोड़ भी रही है। वहां एक शानदार एक्सपीरियंशियल म्यूजियम भी बनाया गया है, जो करीब 2500 वर्ष के इतिहास का अनुभव देता है।
अभी कुछ महीने पहले ही जम्मू कश्मीर के बारामूला में बौद्ध काल की प्रमुख बुद्धिस्ट साइट का पता चला है। अब इसके संरक्षण का काम तेज किया जा रहा है। साथियों, पिछले 10-11 वर्षों में भारत ने बौद्ध स्थलों को आधुनिकता से जोड़ने का भी प्रयास किया है। बोध गया में कन्वेंशन सेंटर और मेडिटेशन व एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। सारनाथ में धमेक स्तूप पर लाइट एंड साउंड शो और बुद्ध थीम पार्क का निर्माण किया गया है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। तेलंगाना के नालगोंडा में एक डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। सांची, नागार्जुन सागर, अमरावती, इन सभी जगहों पर तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की गई हैं। आज देश में एक बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है ताकि भारत के सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों की आपस में बेहतर कनेक्टिविटी हो और दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को आस्था और आध्यात्म का एक बेहतरीन अनुभव मिल सके। साथियों, हमारा प्रयास है कि बौद्ध विरासत सहज रूप से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, वैशाख और आषाढ़ पूर्णिमा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पीछे यही सोच है। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के अभिधम, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में है। हमारा प्रयास है कि पाली भाषा सामान्य जन तक पहुंचे। इसके लिए पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें